Welcome to video lecture series on structural analysis 1. Now this is continuation of analysis of continuous beam using three moment theorem. In last lecture we have seen a beam with three span actually, AB, BC and CD, right? Now in this case there are only two span, but here A span is a fixed span. Now as far as three moment theorem is concerned, to calculate the unknowns, right, we have to form the equations. For example, in last lecture there was only two unknowns and therefore two equations were needed, and to form two equations we have to apply three moment theorem twice, right? Similarly, now here also what will happen, this is the fixed end and therefore moment at MA क्या रहेगा, zero रहेगा, right? Similarly this is continuous beam, यानी sorry, this is fixed end and therefore there will be some moment. Okay, moment zero कब रहता है, only one simply supported beam. Continuous beam पे भी there will be a moment MB and moment at C will be equals to zero because it is a simply supported beam. तो कितने unknown moments है, दो unknown moments है, और अगर दो unknown moments है तो हमें दो equations लगेंगे, और दो इक्वेशंस के लिए हमें दो बार थ्री मोमेंट थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? लेकिन यहाँ पे तो दो ही स्पैन है, यानी हम एक ही बार थ्री मोमेंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. सो ये केस में हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एंड दैट एडजस्टमेंट इज वी हैव टू कंसीडर इमेजिनरी स्पैन. एक इमेजिनरी स्पैन कंसीडर करेंगे हम, जिसकी जो लेंथ है वो L0 है, ये पॉइंट जो है ये A0 है, ठीक है, और इसमें जो एरिया है A0 इज इक्वल्स टू 0 है, उस पर कोई लोडिंग ही नहीं है, इसलिए उसका एरिया क्या रहेगा, 0 रहेगा. तो ये एक इमेजिनरी स्पैन हम कंसीडर करेंगे. व्हेनेवर देयर इज फिक्स्ड एंड, वेदर इट इज ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड, यू हैव टू कंसीडर एन इमेजिनरी स्पैन. वेरी सिंपल. नाउ वी विल रिजर्व दिस एरिया फॉर द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. Okay, let me draw the reference lines. So we have to draw mu diagram first and then mu dash diagram, as we have discussed earlier, right? This is in the center, right? So we will start with step 1. So what is step 1? Step 1 is assume span AB and BC as simply supported. Assume span AB and BC as simply supported, right? And draw mu diagram. Mu diagram means simply supported bending moment diagram. So सबसे पहले हम कौन सा स्पैन लेंगे, स्पैन AB. तो अगर हम स्पैन AB लेते हैं यहाँ पे, स्पैन AB, तो अगर हम AB को कंसिडर करते हैं कि BC स्पैन है ही नहीं, सिर्फ AB स्पैन है और वो भी सिंपली सपोर्टेड है, तो मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पे आएंगी, सेंटर पे. इसलिए हम AB इसको नाम दे दे D और इसको नाम दे दे E. तो अभी मुझे मोमेंट कहाँ पे निकालनी है, D पे. सो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा MD इज इक्वल्स टू WL स्क्वायर बाय 8, स्मॉल WL स्क्वायर बाय 8. सो स्मॉल W इज, इट इज 12 इंटू L इज 8 स्क्वायर बाय 8. Similarly, I will write down those values afterwards. Similarly, for B, span BC, for span BC, maximum moment will occur at center, that is at E. So ME is equals to WL by 4. Since it is in center, WL by 4, or we can also calculate it by WAB by L. So WL by 4. So capital W is 48, L is 6 by 4. So we will get values as (96 and 72). 96 kilonewton meter and 72 kilonewton meter.
right? So now we will draw a mu diagram. So let me draw the base. This is the base. This is point A0. This is point A. This is point B, and this is point C. This is point D, and this one is point E, right? So at B it is 96. So 96, it will be parabolic one since there is a UDL. So 96, and here it is 72. So somewhere here, and this will be a triangular one, and both are positive. This is known as mu diagram, right? Now, what is next step? Next step is to apply three moment theorem on first two spans, right? So step 2. Step 2. Apply थ्री मोमेंट थियरम. कौन से स्पैन पे अप्लाई करते हैं सबसे पहले? ए फॉर स्पैन A0 A B, A0 A एंड, और वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, एंड AB. ये दो स्पैन पे हम अप्लाई करते हैं. तो अगर हम कंसिडर करते हैं A0 A एंड AB, तो इस पे तो कुछ है नहीं, तो ये जो रहेगा यहाँ पे ये हो जाएगा x0, ठीक है, और ये डिस्टेंस हो जाएगा x1. ये ध्यान में रखना है. अभी हमें सिर्फ ये दोनों के बारे में सोचना है, इसके बारे में भूल जाइए. तो अगर हम ये दोनों के बारे में सोचते हैं तो दिस इज x0 एंड दिस इज x1 एंड दिस इज A1, दिस इज A0, दिस वन इज A2. तो अभी हमें क्या लगेगा? A0 और A1. तो मुझे क्या पता है? मुझे पता है A0 कितना है? 0. A1 कैलकुलेट कर सकते हैं हम? हाँ कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या आएगा फॉर्मूला? 2/3. बेस कितना है? 8 एंड हाइट कितनी है? 96. सो वैल्यू ऑफ A1 इज 512. 512. सिमिलरली x0 कितना है? 0. और x1 कितना निकलेगा? ऑब्वियस है, CG जो एग्जैक्टली सेंटर पे है, यानी कितना हो जाएगा x1? 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर. और कुछ चाहिए कि हमें? और कुछ नहीं चाहिए. अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. फॉर्मूला क्या आएगा हमारा? m0 L0 प्लस ट्वाइस ma इन ब्रैकेट L0 प्लस L1 प्लस mb L1 इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट 6 L0 x0 सॉरी 6 A0 x0 अपॉन L0 प्लस 6 A1 x1 अपॉन L1. नाउ वी विल पुट दिस वैल्यूज. सो L0 m0 ये तो 0 हो जाएगा, राइट? ये भी 0 हो जाएगा. ये 0 है. L1 कितना है? L1 8 है. सो 8 इंटू 2 16. सो 16 ma प्लस L1 कितना है? 8. सो 8 mb इज इक्वल्स टू माइनस, ये वैल्यूज पुट करेंगे हम 6. A1 की वैल्यू कितनी है? 512. x1 की वैल्यू कितनी है? 4 डिवाइडेड बाय L1 की वैल्यू कितनी है? 8. इसको सॉल्व करने का हमें इक्वेशन मिलेगा 16 ma प्लस 8 mb इज इक्वल्स टू प्लस 8 mb इज इक्वल्स टू minus 1536, minus 1536. okay, and let us say this as equation 1. तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. अब हम ये साइड में कैलकुलेशंस करेंगे. अब नेक्स्ट कैलकुलेशंस हमें क्या करना है? जैसे हमने यहाँ पे A फॉर स्पैन A0 A एंड AB के लिए अप्लाई किया था, अब यहाँ पे लिखेंगे हम B फॉर AB एंड BC. AB एंड BC के लिए अप्लाई करते हैं. तो AB एंड BC के लिए क्या लगेगा हमें? A1. अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे जो x1 है वो ये साइड से हो जाएगा, क्योंकि अभी AB और BC के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा ये कंडीशन में x1 और ये हो जाएगा x2. ठीक है, x1 कितना हो जाएगा? अगेन 8/2 होगा क्योंकि CG सेंटर पे है, और फॉर्चुनेटली यहाँ पे भी लोड सेंटर पे है, इसलिए x2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? x2 की वैल्यू हो जाएगी 3 मीटर. और अगर ये लोड सेंटर पे नहीं रहा तो फिर फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है हमें?
L प्लस बी बाय 3 अगर ये साइड का है, और अगर ये साइड का कैलकुलेट करना है तो L प्लस ए बाय 3। वेरी सिंपल। तो x1 और x2 हमें मिल गया। क्या a2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आएगा? हाफ बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है 72। कितना आता है a2? लेट मी राइट डाउन a2 फर्स्ट। 216 a2 की वैल्यू आ जाएंगी 216। ओके, सो ये हो गया हमारा। अभी हम अप्लाई करते हैं डायरेक्टली, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा? MA L1 प्लस ट्वाइस MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 इज इक्वल्स टू माइनस 6A1 X1 अपॉन L1 प्लस 6A2 X2 अपॉन L2। अभी हमारे पास सभी वैल्यूज है। MA की वैल्यू है, MA L1 की वैल्यू है, MA हमें कैलकुलेट करना है। L1 L2 की वैल्यूज है, दैट इज 8 एंड 6। L2 की वैल्यू, अभी मुझे बताइए यहाँ पे MC की वैल्यू कितनी रहेंगी? 0 हो जाएंगी ना, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है, तो MC 0 हो गया। फिर हमें ये वैल्यूज सभी मालूम है, A1 X1 L1 और A2 X2 L2। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करने के बाद हमें इक्वेशन मिलेगा, एंड दैट इक्वेशन इज 8MA प्लस 28MB 8MA plus 28MB is equals to 2184 minus 2184. So let us say this as equation number 2. फिर हम लिखेंगे solving equation 1 and 2, we will get value of MA is equals to value of MA and MB minus 66.5 and value of MB as minus 59 kilonewton meter, similarly kilonewton meter, and value of MC is known to us, it is 0 since it is a simply supported beam, right? Okay, सो अभी हमें ये मिल गया। ये मिलने के बाद हम क्या करेंगे? फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो लेट मी ड्रॉ द स्पैन फर्स्ट। ओके, ये क्या है? A है, ये है B और ये है C। A पे मोमेंट कितनी है? माइनस 66.5, लेकिन ये हमें ऊपर प्लॉट करनी है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। सो यहाँ पे प्लॉट कर दी मैंने माइनस 66.5। उसके बाद 59 कहीं तो भी यहाँ पे आ गया, तो इसे हम ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस and then 0। ये हो गया निगेटिव। दिस इज म्यू डैश डायग्राम, अगेन इन किलो न्यूटन मीटर। अभी मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है? पहले ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, फिर दूसरी डायग्राम ड्रॉ करनी है, फिर दोनों का ओवरलैप ड्रॉ करना है। तो अभी मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं ये दोनों को मिटाता हूं और ओवरलैप डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ठीक है। So what is value of 96, 72, 66 and 59? So 96 यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम। This is 96, then 72 somewhere here. This is 72. Okay. Now with a different color, we will draw fixed bending moment diagram. 66.5. So this is 72 somewhere here. 66.5 and then 59, so somewhere here 59. now above this line जो भी एरिया रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और बिलो दिस लाइन जो भी एरिया रहेगा निगेटिव रहेगा। और जो ओवरलैप्ड एरिया है, यानी ये एरिया के ऊपर जो ओवरलैप्ड एरिया है वो एरिया 0 हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक्चुअली ऐसी रहेगी। ठीक है, like this, and this is final bending moment diagram in
किलो न्यूटन मीटर। डन। तो काफी सिंपल था, हमने फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अभी हमें क्या ड्रॉ करना है, एसएफडी। लेकिन एसएफडी ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिएक्शंस चाहिए। मैंने आपको बताया था रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए इजी मेथड, तो अभी फिर से डिस्कस करता हूँ आपके साथ। क्या करना है, ये सभी स्पैन्स को इंडिविजुअली ड्रॉ करना है। तो अभी तो फिलहाल 2 ही स्पैन है, तो 2 स्पैन को हम इंडिविजुअली ड्रॉ करेंगे, ए बी एंड बी सी। सिंपली सपोर्टेड ड्रॉ किया, ठीक है। इसे नाम देता हूं मैं ए बी, बी एंड सी। इसे नाम दे देंगे हम आर ए, आर बी वन, आर बी टू एंड आर सी। इस पे तो यूडीएल है, हमें पता है कितने किलो न्यूटन का, ये है 12 किलो न्यूटन का। इस पे पॉइंट लोड है सेंटर पे, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर, दिस टोटल इज 8 मीटर। 48 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है। चलो अभी आर ए आर बी कैसे निकालेंगे, तो मूवमेंट भी बचे है, तो ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट से कैसे है, हॉगिंग मूवमेंट है, इसलिए ये अप्लाई ऐसे करना है, ठीक है। तो ये रहेगा 66.5 पॉजिटिव लिखना है, ये है 59, तो इसे ऐसे अप्लाई करना है और इसे ऐसे अप्लाई करना है। यहाँ पे भी लिख देंगे हम 59 और यहाँ पे भी लिखेंगे 59। यहाँ पे कोई मोमेंट है नहीं, सी पे तो मोमेंट 0 था। चलो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव ले लेंगे, यानी आर ए ऊपर जा रहा है, आर बी वन ऊपर जा रहा है, और नीचे क्या आ रहा है 12 इंटू 8, राइट। फिर समीशन ऑफ मूवमेंट एट एम ए इज इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। तो समीशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल्स टू 0 किया तो आर ए इंटू 0 हो जाएगा, राइट। देन प्लस 12 इंटू 8 इंटू 4 हो जाएगा, करेक्ट। देन माइनस आर बी वन इंटू 8 हो जाएगा। देन बचते मूवमेंट, तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए माइनस 66.5, और ये प्लस है इसलिए प्लस 59 इज इक्वल्स टू 0। इस पे से हमें क्या मिलेगा, आर बी वन की वैल्यू कितनी आती है 47.06 किलो न्यूटन। इसे ही अगर हम पुट करते हैं ये इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएंगी आर ए की वैल्यू, एंड वैल्यू ऑफ आर ए इज 48.93 किलो न्यूटन। चलो आर बी वन और आर ए की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे आर बी टू और आर सी की वैल्यू। फिर से समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, आर बी टू ऊपर जा रहा है प्लस आर सी ऊपर जा रहा है इज इक्वल्स टू 48 नीचे आ रहा है, राइट। ये हो गया एक इक्वेशन। देन समीशन ऑफ मूवमेंट एट बी इज इक्वल्स टू 0 अगर हम करते हैं तो आर बी टू इज इक्वल्स टू आर बी टू इंटू 0 हो जाएगा, डिस्टेंस 0 है, प्लस 48 इंटू 3 माइनस आर सी इंटू 6, राइट। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए माइनस 59 इज इक्वल्स टू 0। इस पे से हमें मिल जाएंगी वैल्यू ऑफ आर सी एंड आर बी टू 6। सो आर सी इज 14.16 and RB2, so 48 minus answer 33.83। अब हम ये दोनों को ऐड कर देंगे RB1 और RB2 को, सो कितना हो जाएगा 47.06, इट इज 80.89, सो RB इज 80.89, ओके। सो हमें आर बी मिल गया, आर सी मिल गया, हम ये वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी आर ए की वैल्यू कितनी है, आर ए की वैल्यू है 48.93, ये कैसे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, राइट। आर बी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 80.89 एंड आर सी की वैल्यू कितनी है 14.16। अभी मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने की। कुछ भी नहीं, एक बेस ड्रॉ करना, ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज प्लॉट करना, नीचे नेगेटिव वैल्यूज प्लॉट करना, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे ये वैल्यूज जो ऊपर जा रही है 48.93, सो 48.93 हमने कैलकुलेटर में ले लिया और ये प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे।
48.93। अब ये पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है, और यहाँ पे यूडीएल नीचे जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे -12 × 8 कितना आता है, -47.07। सो -47.07। अब यहाँ पे ये पॉइंट पे ये जो आरबी है ऊपर जा रहा है, सो +80.89, 33.82, 33.82। फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कुछ भी नहीं है, देखो देयर इज नो लोड, इसलिए इट विल गो स्ट्रेट। सो यहाँ पे भी कितना रहेगा 33.82 -48 33.82 -48 कितना मिलेगा 14.18। सो -14.18, सो -14.16 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा आंसर 16 है। फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं, इट विल गो स्ट्रेट, और यहाँ पे अगेन कितना है 14.16। सो 14.16 कितना हो जाएगा 0 आंसर आया, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशंस सही है। तो देखो वेरी सिंपल, हमने कितना इजीली, अब ऊपर के प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे SFD, इसमें किलो न्यूटन में, वेरी सिंपल, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और वी कैन एनालाइज द बीम। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और डिफिकल्ट हमें न्यूमेरिकल्स आते जाएंगे, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम ऐसे देखेंगे जिसमें बोथ साइड फिक्स्ड बीम है, या फिर कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे देखेंगे जिसमें ओवरहैंगिंग बीम है, राइट। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।